Welcome back to our initiative Legally Saral. First of all, our team would like to thank you all for your overwhelming response for our previous videos. Today, our topic will be taxation on charitable or religious trust, which is governed by Section 11, 12, and 13 of the Income Tax Act. This section has now become very relevant in today's era, where the government has started focusing on this section because most of the trust NGOs are taking registration and they are not complying with the provisions of exemption eligible to them in compliance of this section. So friends, first of all, I would like to tell you charitable activity, how does it define in the Income Tax Act? Charitable is governed by Section 215 of the Income Tax Act, which states that you are running an organization whose motive is not to earn a profit, and the purpose of this charitable activity will include relief to poor, education, medical, yoga, or any other advancement of general public utility. Which means कि अगर आप कोई ऐसी संस्था चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उसका प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं होना चाहिए, और वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, योगा से रिलेटेड हो सकता है, मेडिकल रिलीफ के लिए हो सकता है, फॉर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए हो सकता है, और एक जनरल एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी हो सकता है. बट ये सेक्शन क्या प्रोविजंस को समझाता है, आज हम इस चैनल के माध्यम से सेक्शन 11 को पहले समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज, as our purpose is only to decode the law in a very user friendly manner. So let's start, friends. First, section 11 is the most important provision which is governed with sub clauses and subsections with explanations. So let's start with 11 subsection 1. What does it state? Subject to the provisions of section 60 to 63, the following income shall not be included in the total income of the previous year of the person in receipt of the income. ये आपको ही समझाने की कोशिश कर रहा है सेक्शन कि आपकी फॉलोइंग इनकम नहीं मानी जाएगी उस साल में जिस साल आप ये इनकम को रिसीव करेंगे. कौन सी इनकम derived from the property held under the trust wholly for charitable or religious purpose to the extent to which such income is applied to such purpose in India, and where any such income is accumulated or set apart for application to such purpose in India, to the extent to which the income so accumulated or set apart is not in excess of 15% of the income of such property. Income Tax Act इस subsection 11 subsection 1 clause A में ये बताना चाहता है कि अगर आपकी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है 12A सेक्शन में, तो उसकी सारी इनकम जो भी आप अर्न करेंगे दैट विल बी एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड कि आपने वो इनकम अप्लाई करी इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस. और अगर आपकी इनकम कोई सरप्लस एक्यूमुलेट हो गया, लेट से आपने 10 लाख की रिसीट्स करी और आप 5 लाख ही खर्च कर पाए इस साल में, तो उस सिचुएशन में आपके क्लॉज क्या कहते हैं कि अगर आप कोई सरप्लस सेव करते हैं तो दैट सरप्लस शैल नॉट एक्सीड 15%. आपका सरप्लस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हमारे एग्जांपल में 10 लाख की मेरी रिसीट थी, 8.5 लाख रुपीस मैंने खर्च कर दिया, तो 1,50,000 रुपीस जो आपका बच गया वो 15% ब्रैकेट में आता है और आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा. अगर आपकी रिसीट्स है 10 लाख और आपकी एप्लीकेशन है 5 लाख, सो आपको अलाउड कितना है 1,50,000. सो लेस 3,50,000 रुपीज जो बैलेंस रह गया दैट विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स. क्लॉज बी,
income in the form of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form the part of the corpus of the trust shall not be considered as the income, shall not be included the income. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है, डोनेशन दिया है और वो साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहा है कि आपकी इनकम जो ये मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, दैट विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कि आप इससे बिल्डिंग बनाएंगे या आप इससे किसी का वेलफेयर करेंगे या आप इस पैसे को इसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपकी इनकम का पार्ट नहीं होगा। ये सेक्शन ये बताना चाहता है। इस सबसेक्शन 1 के साथ देयर आर 5 एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि इन कंप्यूटिंग द 15% ऑफ द इनकम which may be accumulated or set apart, any such voluntary contribution as referred in section 12 shall be deemed to be the part of the income। इसका मतलब अभी हमने पीछे देखा कि अगर कोई आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कि आप इसको एक पर्टिकुलर पर्पस से यूज करेंगे तो वो आपकी इनकम में नहीं आएगा, उसको आपको 85% एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, उसको 15% उसमें सरप्लस रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कोई ऐसी डोनेशन मिल रही है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि इसको कहाँ पे यूज करेंगे, इन दैट केस 15% से ज्यादा आप सरप्लस अगर रखते हैं उस साल में तो आपको इनकम टैक्स लगेगा और वो डोनेशन को भी इनकम माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स अंडर सेक्शन 11 एंड 12। सेकेंड क्लॉज इन एक्सप्लेनेशन का, if in the previous year the income applied to a charitable or religious purpose in India falls short of 85% of the income derived during that year for the property held under the trust or as the case may be, for the reason the whole or any part has not been received during the year or for any other reason। इसका मतलब ये है कि ऐसी भी सिचुएशन कई बार ट्रस्ट में आ जाती है कि इनकम जो है वो बिल्कुल मार्च फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आ रही है या वो फाइनेंशियल ईयर में रिसीव नहीं हुई। एग्जाम्पल, मेरी एफडी है एक ट्रस्ट में 1 करोड़ की, उस पर मुझे 10 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मेरा एफडी में एक्यूमुलेट हो गया, जुड़ गया, लेकिन मुझे वो पैसा मिला नहीं। अब एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं उस इनकम तो बुक करूंगा क्योंकि मेरे उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, लेकिन मैं उसको अप्लाई कैसे करूं? लॉ कहता है कि 85% आपको अप्लाई करना है, लेकिन मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो उस केस में सेक्शन ये बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन, कि अगर ऐसी कोई सिनेरियो है जहाँ पे इनकम आपको मिली ही नहीं या मिली तो बिल्कुल लास्ट में मिली, मार्च के एंड में, जहाँ आप एक्सपेंस कर ही नहीं सकते हो, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे उसको, पर उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उस इनकम का वो अभी आपको आगे बताएंगे जब हम अपने इनकम टैक्स ऑफिसर से एक रिक्वेस्ट करके एक फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म को कहते हैं फॉर्म 9A, और वो हम उस फॉर्म को अपलोड करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे और वो एप्लीकेशन मान लिया जाएगा कि आपका इस साल का इनकम के गेन से एप्लीकेशन हो गया। इस सेक्शन को आगे डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, इस इट रिलेटेड टू कॉर्पस फंड्स, any amount credited or paid out of the income referred in clause A, B of the explanation 1, being contribution with a specific direction that it shall form the corpus, shall not be treated as application of the income for charitable religious purpose। This means, अभी हमने पहले देखा 2 स्लाइड्स पहले कि अगर आपको कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कि इस पैसे को आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही स्पेंड करेंगे, तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलना चाहता है कि जब आपकी इनकम ही नहीं है तो उस पैसे से आप कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन भी नहीं मानी जाएगी। किस पर्पस के लिए एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी? जो आपकी नॉर्मल डोनेशन या नॉर्मल एक्टिविटी से जो रिसीट्स आ रही हैं चैरिटेबल एक्टिविटी में, उसमें जो आपको 85% खर्च करना है, अप्लाई करना है, वो 85% में ये वाले एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। बहुत फेयर बात है। अगर आप एक स्कूल आप रन कर रहे हैं, आपके स्कूल में फीस आई 10 लाख रुपीस और आपको कोई डोनेशन दे गया कॉर्पस 2 लाख रुपीस, तो आपको 12 लाख टोटल मिले, लेकिन आपको स्पेंड कितना करना है? 10 लाख का 85%, क्योंकि 2 लाख के लिए वो आपकी इनकम है ही नहीं, आप उसको अपनी सुविधा अनुसार उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपने ऐसा किया कि 10 लाख में से तो आपने सिर्फ 7 लाख खर्च करे और 2 लाख आपने पूरे खर्च कर दिए, तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ वो जो 2 lakhs आपको जो कॉर्पस के डोनेशन के मिले थे और आपने वो 2 लाख स्पेंड कर दिए, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। वो 10 लाख में से 7 लाख ही रिड्यूस होगा, उस 10 लाख में से 9 लाख रिड्यूस नहीं होगा। Explanation 3. For the purpose of determining the amount of application under clause A or B, the provision of subclause IA, clause A of section 40, subsection 3 and 3A of section 40A shall apply which is apply as they apply in the computing the income chargeable under the head PGBP. इसका मतलब ये है, जब हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं, हम जानते हैं नॉर्मल बिजनेस एंटिटीज में जहाँ पे आपको TDS काटना होता है, कोई भी पेमेंट आप स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड करते हैं, आपको TDS डिडक्ट करना होता है। कमीशन है तो 5%, प्रोफेशनल फीस है तो 10%, सैलरी है तो एज पर 192B सेक्शन। और 3 और 3A क्या कहता है कि आपको 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट्स करी हैं जिसमें TDS डिडक्ट नहीं करा या आपने कैश पेमेंट 10,000 से एक्सीड कर दी, तो वो आपके TDS के केस में 30% आपको एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा आपका, और 10,000 से ऊपर जो आप एक्सपेंस करेंगे वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल जो एक बिजनेस एंटिटी के ये जो लॉ एप्लीकेबल है, वही लॉ ट्रस्ट के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया है। Explanation 3A. This is a very recently amended application. इस एप्लीकेशन में राम जन्मभूमि की याद आती है। अभी राम मंदिर रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, ये बिल्कुल उसी के लिए ही एक्सप्लेनेशन 3A लेकर आए हैं। For the purpose of this subsection, where the property held under the trust or institution includes temple, mosque, gurdwara, or any other place notified under clause B subsection 2 of ATG, any sum received by such trust institution as voluntary contribution for the purpose of renovation, repair of temple, mosque, gurdwara, church or other place, be treated as such trust as forming part of the corpus of the trust, subject to condition that trust or institution should follow these conditions. इसमें वो क्या बोलना चाहता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप सेक्शन 80G सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ऑप्शन से नोटिफाई करेगी, वो टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और कोई और प्लेस भी हो सकती है। अगर आप ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है और आपको कोई भी डोनेशन आ रहा है, उसमें वॉलंटरी भी आ सकता है और कॉर्पस डोनेशन भी आ सकता है, चाहे वो वॉलंटरी आ रहा है या कॉर्पस आ रहा है, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कॉर्पस ही माने, लेकिन उसके साथ ये कंडीशंस है कि अगर आप उसको कॉर्पस मानते हैं तो आपको उसको उसी पर्पस में स्पेंड करना है जिस पर्पस के लिए आपने वो डोनेशन लिया। आप मंदिर बनाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं तो आप मंदिर बनाने में उस पैसे को खर्च करेंगे, आप उसको किसी और को डोनेट नहीं कर सकते हो, और जब तक आप उस पैसे को खर्च नहीं करते हो तब तक वो पैसा आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है और आप उस पैसे को कहीं पे डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, एक्सप्लेनेशन 3B क्या बोलता है, अगर आप ऐसा वॉल्यूशन करते हो ये 4 कंडीशंस जो मैंने बताई आपको, तो आपकी जो जितना भी अमाउंट आपने डाइवर्ट किया या मिस यूज करा या आपने किसी को डोनेट कर दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। एक्सप्लेनेशन 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ये भी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2022 में अमेंडमेंट आया था। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अंडर क्लॉज ए और बी, ये क्लॉज ए और बी हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा, फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया था इसको। इसमें वो ये बोलना चाहता है, एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस फ्रॉम द कॉर्पस एज रेफर्ड टू इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन shall not be treated as application of income for charitable or religious purpose, provided that amount not so treated as application or part thereof shall be treated as application for charitable or religious purposes in the previous year in which the amount or part thereof is invested back. आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इजी लैंग्वेज में मैं फिर से इसको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हमने पीछे स्लाइड्स में देखा, जब आपको कॉर्पस डोनेशन मिलती है, कॉर्पस डोनेशन मींस डोनेशन विद स्पेसिफाइड पर्पस, तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती है। सिमिलरली उसके एप्लीकेशन, अगर आप उस पैसे से कोई पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंस भी नहीं माना जाएगा।
लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी साल में कि आपके पास पैसा कॉर्पस में तो पड़ा हुआ है बट आप उसको खर्च करना चाहते हैं फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस, जो पर्पस आपको दिया गया था आपने फंड्स की शॉर्टेज हो गई और आपने उस पैसे को खर्च कर लिया, तो इन दैट केस वो उस साल आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। वो एप्लीकेशन कब मानी जाएगी? जब आप अपना नॉर्मल कलेक्शन का पैसा कॉर्पस में वापस डाल देंगे। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मेरी नॉर्मल फीस 10 लाख रुपए है, एक मैं स्कूल चलाता हूँ, कॉलेज चलाता हूँ, मेरी नॉर्मल फीस 10 लाख रुपए है कलेक्शन, और मेरे कॉर्पस में 5 लाख रुपए मुझे डोनेशन के आ गए। अब 5 लाख तो मुझे खर्च करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर लॉ, वो मेरी इच्छा है मैं उसे कब खर्च करूँ। अब मेरे इस बार एक्सपेंस 15 लाख के हो गए नॉर्मल कॉलेज स्कूल को चलाने में। अब मेरे पास 10 लाख ही पड़े, तो मैंने 5 लाख कॉर्पस वाला पैसा स्कूल और कॉलेज के एक्सपेंस के लिए यूज कर लिया। तो जो मैंने ये 5 लाख रुपए कॉर्पस का पैसा यूज करा फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस ड्यू टू इमरजेंसी, तो मेरा वो एक्सपेंस मुझे 5 लाख का नहीं मिलेगा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया। लेकिन नेक्स्ट ईयर में ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरी फीस 10 लाख ही आई, लेकिन मेरा एक्सपेंस की जरूरत सिर्फ मुझे 5 लाख पड़ी, और जो बैलेंस 5 लाख रुपए है मैंने वापस कॉर्पस में डाल दिया कि अब मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को वापस तो आपका जिस साल आप वापस कॉर्पस में डालेंगे उस साल आपको इसकी एप्लीकेशन एक्सपेंस मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, application for charitable or religious purpose from loan or borrowing shall not be treated as application of the income for charitable religious purpose, provided that amount not so treated as application or part thereof shall be treated as application for charitable or religious purpose in the previous year in which the loan borrowing or part thereof is repaid। बहुत लॉजिकल है। पहले लोग क्या करते थे, एक एसेट खरीदी, लेट से बस खरीदी स्कूल ने और बस के अगेंस्ट लोन ले लिया। जब बस खरीदी तब उसको एप्लीकेशन मान लिया, ये मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा आउटफ्लो फंड्स हो गया। और जब लोन का रीपेमेंट जब कर रहे हैं तो उसको अगेन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में लोन के रीपेमेंट को भी एप्लीकेशन मान रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया इस एक्सप्लेनेशन बताने के बाद कि अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं, तो जब आप एसेट खरीदेंगे तो उस साल लोन के इक्विवेलेंट अमाउंट का एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, डबल एंट्री को अवॉइड करने के लिए। लेकिन जिस साल आप लोन को पे करेंगे उस साल आपका रीपेमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन माना जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख की बस खरीदी और मैंने 5 लाख का बैंक से लोन ले लिया, तो मेरा इस साल एक्सपेंस एप्लीकेशन 5 लाख नहीं होगा। लेकिन मैंने नेक्स्ट ईयर 1 लाख का रीपेमेंट कर दिया लोन का, तो 1 लाख विल बी दी एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटिंग वेदर आई हैव स्पेंड 85% और नॉट। 85% मुझे जो स्पेंड करना है उसमें 1 लाख रुपीस एप्लीकेशन माना जाएगा, 5 लाख नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 5, ये कैपिटल गेन के ऊपर है। इसमें for the purpose of this subsection it is hereby clarified that calculation of capital gain required to be applied or accumulated during the previous year shall be made without any set-off or allowance of any excess application of the year preceding the previous year. For the purpose of this subsection 1, where a capital asset being property held under the trust wholly for charitable or religious purpose is transferred, the whole or any part of the net consideration is utilized for acquiring another capital asset to be held, then the capital gain arising from the transfer of asset shall be deemed to have been applied to a charitable or religious purpose। इसको इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहें, अगर कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास कोई एसेट है जो कि कैपिटल एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो एसेट को वो सेल कर देते हैं, उस साल ट्रांसफर कर देते हैं, और जो पैसा उनको प्रोसीड्स का ट्रांसफर होके मिला उसको उनको इन्वेस्ट करना है फॉर एक्वायरिंग द न्यू कैपिटल एसेट। अगर वो पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जितना उनका पैसा मिला उनको, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं लगेगा। और अगर आपने प्रोपोर्शनेट किया तो आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 11(1)(b) इन द इनकम टैक्स एक्ट। इस सेक्शन में हमने एक फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि अगर आप के पास कोई ऐसे फंड्स आने थे जो आपको मार्च एंड में आ रहे हैं या उस साल आपको आए नहीं, एफडी एग्जांपल में लिया था,
तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अपनी एप्लीकेशन मानने के लिए। तो इसमें कह रहे हैं कि वेयर एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ which an option is exercised under clause 2 of explanation to subsection 1 is not applied to charitable religious purpose in India during the period referred to in clause A or the case may be, then such income shall be deemed to be the income of the person in receipt thereof। जब आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में पैसा नहीं मिला या लेट मिला और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फॉर्म नंबर 9A इनकम टैक्स ऑफिसर को देंगे और आप उनको बोलेंगे कि हम इस पैसे को जिस साल मिलेगा उस साल खर्च करेंगे, इस साल हमारी वो एप्लीकेशन मान ली जाए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 9A जो हम अपलोड करेंगे। ऑन दिस कॉन्टेस्ट अगर आप नेक्स्ट ईयर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं रिसीव करने के बाद भी, then it will be deemed to be the income in the previous year in which the income was received. Now, section 11.2. Now, what this section states, where 85% of the income referred to in clause A or clause B of subsection 1 read with explanation to that subsection is not applied or is not deemed to have been applied to a charitable or religious purpose in India during the previous year, but is accumulated set apart either in whole or in part for application to such purposes in India, such income so accumulated or set apart shall not be included in the total income of the previous year in or of the person in the receipt of income, provided the following conditions satisfied. See, the law is very complicated, बहुत complicated language लिखी हुई है इसमें, इसको हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसमें लॉ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे हमने 85% अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाए। मैंने 10 लाख रुपए अर्न किया और मैंने एक्सपेंस किया सिर्फ 5 लाख रुपीज, लेकिन मुझे कितना करना चाहिए था, एटलीस्ट 8,50,000 रुपीज, क्योंकि 15% ही एक्यूमुलेशन सरप्लस मुझे अलाउ है। इन दिस केस अगर आप उस पैसे को खर्च नहीं कर पाए जितना आपको जरूरत थी, मेरी जरूरत कितनी थी एग्जामिशन लेने के लिए 85%, मैंने खर्च कितना किया 60%, तो उस केस में हम इस सेक्शन में रिलीफ ले सकते हैं, जहां हम अपने असेसिंग ऑफिसर को एक फॉर्म अपलोड करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, जिसे हम फॉर्म 10 कहते हैं। उस फॉर्म को अपलोड करेंगे, पर्पस बताएंगे हम वहां पर कि हम क्यों ये पैसा सरप्लस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मुझे लेट एग्जांपल, मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और वो बिल्डिंग बनेगी 3 साल 4 साल या 5 साल में। अब 1 साल में तो मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मैं बिल्डिंग 1 साल में तो बना नहीं सकता हूँ। तो हम असेसिंग ऑफिसर को एक फॉर्म फाइल करेंगे जिसका फॉर्म 10 नाम होता है सेक्शन 11(2) के लिए, और हम वहां पर उनको पर्पस बताएंगे। वो पर्पस आपका किसी भी केस में 5 साल से एक्सीड नहीं हो सकता है, और जब तक वो पैसा आप स्पेंड नहीं करते हैं, उस पैसे को आपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में 11 सबसेक्शन 5 जो हम आगे देखेंगे कि कौन कहाँ पे हम उस वक्त पैसा रख सकते हैं जब तक हम उसको यूज नहीं कर रहे। आगे वो ये बताना चाहता है कि प्रोवाइडेड दैट in computing the period of 5 years referred to in clause A, the period during which the income could not be applied, for which it is so accumulated set apart due to an order rejection of the court, be excluded। अब वो कह रहे हैं कि आपने 5 years के लिए फॉर्म 10 भर दिया, तो जिस साल आपने फॉर्म 10 भरा उस साल वो आपका एक्सपेंस एप्लीकेशन मान लिया जाएगा, और लेकिन 5 साल के बाद अगर आप उस खर्चे को नहीं स्पेंड कर पाए तो वो जो बैलेंस रह जाएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन किसी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ गई, आपने कोर्ट से परमिशन ले लिया कि मैं 5 साल में नहीं इसको 7 साल में खर्च करना चाहूँगा, और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया, तो आपके पास वो पीरियड उतना आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने जब फॉर्म 10 भरा तब आपने उसी साल आपको एक्सपेंस की परमिशन मिल गई, डीम्ड एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स में, डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया गया। अब जब नेक्स्ट ईयर आप एक्सपेंस करेंगे तो वो आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। आप कोई भी खर्चे को एक ही बार लेंगे, या इधर जिस साल आपने फॉर्म 10 भरा उस साल लेंगे, या आगे सालों में आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 11(3) एनी इनकम, जो हमने अभी पीछे 11(2) देखा कि मेरे पास 85% खर्च करने के लिए मैं एलिजिबल नहीं कर पाया अपनी बुक्स को,
तो मैंने उसमें फॉर्म 10 भर दिया। फॉर्म 10 मैंने भरा, असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे दी। अब अगर आपने उस जो असेसिंग ऑफिसर को आपने पर्पस बताया था कि मैं इस पैसे को यहाँ खर्च करूंगा, आपने वो चैरिटेबल वाला पर्पस पूरा नहीं करा। आपने जहाँ पे पैसे को रखना था, बैंक में, एफडीज में, आपने वहाँ पे नहीं रखा। आपने जिस पर्पस के लिए उसको एक्यूमुलेट करा था कि मैं अगले 5 साल में या 3 साल में वहाँ खर्च कर दूंगा, आपने वो पर्पस को यूटिलाइज नहीं करा, या आपने किसी और संस्था को पैसा दान कर दिया। जो आपने बिल्डिंग के लिए एक्यूमुलेशन करवाया था लेकिन आपने दान कर दिया, तो उस केस में भी आपका 11(3) अट्रैक्ट हो जाएगा, जो ये कहता है कि आप जो भी आप ऐसा काम करेंगे, आपकी वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। जितना भी पैसा आपने 50 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए एक्यूमुलेट करा, खर्च तो आपने 30 लाख करा, 20 लाख आपने किसी संस्था को दान दे दिया, या आपने बैंक से उसको कहीं और खर्चा कर दिया, तो आपका वो 20 लाख रुपए इनकम टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर 3A उसमें एक्सप्लेनेशन डाला है कि अगर आप उस इनकम को इमरजेंसी में, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में, अगर आपने उसको कहीं पे स्पेंड कर दिया है और आपने अपने असेसिंग ऑफिसर से परमिशन ले ली है कि मैं इस एक्सपेंस को आगे जहाँ पे मैंने खर्च किया वो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और असेसिंग ऑफिसर ने आपको अलाउ कर दिया है, तो आपका वो पर्पस भी अचीव हो जाएगा और वायलेशन हुए नहीं आएगा। 11(4) इज बेसिकली फॉर बिजनेस अंडरटेकिंग। अगर कोई ट्रस्ट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल चला रही है और कोई बिजनेस भी कर रही है, तो उसमें वो बोलते हैं कि आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, और जो बिजनेस की इनकम होगी वो आपकी ट्रस्ट की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो नॉर्मल एक अलग सेपरेट तरीके से उसका असेसमेंट होगा। ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं होगा, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। 11(5) बेसिकली जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं पैसा, या जिसके लिए हमने 9A फॉर्म भरा कि हम ये पैसा बिल्कुल लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मिला है, हम इसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पैसे को आपको रखना कहाँ पर है। कॉर्पस की डोनेशन मिली कि स्पेसिफिक डायरेक्शन पे खर्च करना है, तो ये 11(5) में बताया हुआ है कि आप इसको सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, NSC जैसे, आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में रख सकते हैं, आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या शेड्यूल बैंक में पैसे को रख सकते हैं, आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन मोड्स में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन मोड से डेविएट कर दिया, दैट केस आपका जितना भी डेविएशन है उतना आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 30%. 11(6) This is a very logical section. In this section, where any income is required to be applied or accumulated set apart for application, then for such purpose the income shall be determined without any deduction or allowance by way of depreciation or otherwise in respect of any asset, acquisition of which has been claimed as an application of income under this section in the same or any the previous year. बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ इस सेक्शन में क्या है। अगर आपने एक गाड़ी या बस खरीद ली, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख की, तो आपका उसी साल 10 लाख रुपए का एप्लीकेशन मान लिया जाता है। दैट इज द लॉ ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, दैट इज हाउ द अकाउंटिंग वर्क्स इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब आपने गाड़ी 10 लाख की ली, तो आपने 10 लाख का एक्सपेंस मान दिया। अब नेक्स्ट ईयर आप उसका डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं 15%, तो वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में डल रहा है। तो 11(6) कहता है कि जब आपने एक बार 10 लाख रुपए का एक्सपेंस कर लिया, तो जो अब आप 1.5 लाख डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं वो आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। बहुत लॉजिकल भी है और बिल्कुल ठीक भी है। 11(7) इस सेक्शन को मैं और थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहूंगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट को 2 एग्जम्पशंस मिलती हैं। एक सेक्शन 10 में मिलती है, 23C, 46, और एक 12A जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें मिलती है। अगर आपकी ट्रस्ट, पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले लोग सेक्शन 11 में सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन लेके सेक्शन 11-12 की भी एग्जम्पशन अपने पास रखते थे चैरिटेबल में, और 1023C की भी रखते थे कि हम दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अपने पास रखते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप सेक्शन 12 में हैं तो आप 1023C में नहीं आ सकते, और अगर आप 1023C में एग्जम्पशन ले रहे हैं तो आप 11 में नहीं आ सकते। तो दिस सेक्शन स्टेट्स कि आप दोनों में से एक ही रजिस्ट्रेशन
अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जामिशन। अगर आपने एक अप्लाई कर दिया और पहले आपके पास दोनों थे तो जो दूसरा है वो ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव हो जाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया 2 साल पहले। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम जानते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। अब मैंने डेट से मार्च की सैलरी हम 7 अप्रैल को पे करते हैं, तो मार्च की सैलरी में वो उन्होंने बोल दिया है कि provided that during any previous year any sum has claimed to have been applied by trust institution, such sum shall not be allowed as application subsequent previous year. और इसके बाद ऊपर explanation है, for the purpose of this section any sum payable by any trust shall be considered as application in the previous year if the sum is actually paid by it. Meaning thereby, अगर आपकी कोई expense है जिसका पेमेंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या करा है, वो पेमेंट आपका एप्लीकेशन माना जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो हम डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। मेरी एक ट्रस्ट है, उसकी 10 लाख रुपए की रिसीट्स है और उसके 9 लाख रुपए के एक्सपेंस है, लेकिन वो जो 9 लाख के एक्सपेंस में से 2 लाख के एक्सपेंस मैंने 7 अप्रैल को चेक काटा, मैंने उसका इशू किया सैलरीज का, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे जो 9 लाख के एक्सपेंस है वो 7 लाख मान लिए जाएंगे। तो नुकसान क्या होगा, मुझे 10 लाख के अगेंस्ट खर्च करना था 8,50,000, लेकिन मेरा चेक लेट इशू करने की वजह से वो 7 लाख रह गया। तो जो 1.5 लाख रुपए बैलेंस रह गया, जो आपको रिक्वायरमेंट थी खर्च करने की, दैट विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। Thanks everyone for being a patient hearer in understanding the provision section 11. The series section 12, 13 and 115 TD will be followed in continuation of this video. We will be very thankful if you will share a feedback to improve ourselves and in decoding a law in a user-friendly framework. Thanks.